Good morning, students. Welcome to Business Studies class. Today we are going to talk about a very important topic, that is business environment. We have heard a lot about environment, and it's very clear when you ask someone what is environment, some common answers are expected. They will be saying it's all about nature, greenery, and some of them will be talking about parks, mountains, earth, solar system, etc. And some other kind of thought that comes to our mind is all about pollution, greenery, mountain, climatic changes, etc., etc. No doubt, this is correct, but it is a narrow perspective of environment we are talking about. Because environment is not consist of only nature-made things. It is a wide term. It includes nature-made things also and human-made things also. Nature-made things you can see water, air, living things, non-living things, and human-made things consist of building, park, bridges, roads, monuments, industries. Even if we see the environment of a human, that also consists of so many parties. Human being is surrounded by individuals, they have family, they do have community to interact, they do preach some religious faith, they have education, they have economic, political system, etc., etc. So we can say that environment is a sum total of things that surrounded any individual. So just like a human, business is also a separate entity. So business do have its own environment. And today's topic is devoted to this concept, business environment. So let's talk about what is business environment. The term business environment means the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but that may affect its performance. जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये सम टोटल है किस किस चीज का इंडिविजुअल्स institution means organizations and other forces. क्या है ये other forces? अभी के लिए हम ये समझेंगे these are outside the control of the business. ये जो individuals हैं, ये जो organizations हैं, ये जो forces हैं, ये business के control के दायरे में नहीं आते हैं. It is outside, but that may affect its performance. लेकिन ये बाहर होने के बावजूद भी बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं. So we are saying it consists of individual, society, environment. Individuals, business एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है जहां पर बहुत सारी पार्टीज बिजनेस से इंटरेक्ट करते हैं, लाइक सप्लायर्स, लाइक कस्टमर्स, लाइक बैंकर्स. इवन इट इज an integral पार्ट ऑफ सोसाइटी. तो सोसाइटी में ऑपरेट होने वाले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रिलीजियस सिस्टम्स, लाइक एनजीओस, लाइक अदर फर्म, कॉम्पिटिटर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, दैट ऑल अफेक्ट द एनवायरमेंट ऑफ अ बिजनेस. Business environment is not only we are talking about the outside environment, it do means some internal environment. जहाँ business operate होता है वहाँ के अंदर का co-partners के बीच का क्या relationship है, वहाँ के employees का एक दूसरे के साथ क्या environment है. तो business के अंदर भी एक environment होता है. The environment which is created within the boundaries of the business, inside the boundaries of the business, is called internal environment. And in the similar way they have some external environment also.
एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से आ जाते हैं? बिजनेस का मीडिया के साथ इंटरेक्शन कैसे है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज, देन टेक्नोलॉजिकली क्या चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक में क्या चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल की चेंजेस क्या हो रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क में क्या होते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. तो बिजनेस डू हैव इंटरनल एनवायरमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट. और जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट है इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. व्हाट आर दीज दोज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट? Micro environment and macro environment. This diagram will also help you to understand. Micro is means small, and when these are the small, इसका जो दायरा छोटा होता है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. लाइक ऑरेंज पार्ट इज टेलिंग इट इज अ माइक्रो इन्वायरमेंट. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बायर्स, उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके जो सप्लायर्स हैं, राइवल्स हैं, जो नई मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट लेके आ रहे हैं, अब ये सारे लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही अफेक्ट करते हैं. तो ये उसका माइक्रो एनवायरनमेंट है. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का माइक्रो एनवायरनमेंट भी होता है और मैक्रो भी होता है. मैक्रो क्या होता है? वो फैक्टर्स और फोर्सेस जो सभी को प्रभावित करती हैं, जैसे लॉ एंड पॉलिसीज, इकोनॉमिक फैक्टर्स, स्टॉक मार्केट का जो रिएक्शन है सबको अफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, डेमोग्राफिक, हमारी जो पॉपुलेशन का जो कॉन्स्टिट्यूंट है उसका ज्योग्राफिकल जो है उसमें मैटर करता है कि हमारा पॉपुलेशन जो है उसमें कौन सी रेंज के लोग हैं, ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं या ज्यादा बच्चे हैं या ज्यादा यंगस्टर्स हैं. दैट इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक पोजीशन ऑफ द कंट्री एंड द सोशल वैल्यू, हमारा फेथ क्या है. सो जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट एज वेल एज मैक्रो एनवायरनमेंट. तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक सम, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसमें इंडिविजुअल्स हैं, उसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें फोर्सेस हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है लेकिन बिजनेस को अफेक्ट करती है. नंबर 2, business environment consists of the internal environment of the business as well as external environment of the business, and the external environment of the business consists of micro environment that consists of these party which affects only particular business organization, and macro environment also, that is the forces which are going to affect all the industries. Now there are certain features of business environment that we are going to talk about one by one. Number 1, business environment is a sum total of things external to the firm. The first thing हमने ये कहा कि the institution, the forces, the individual which affect the business, these are out of the control of the business. It means these are the external forces. But in external forces का जो sum total है वो business का environment consist करता है. Number 2, this environment consists of specific and general forces. Specific forces कौन कौन सी है? Investors, customers, competitors, supplier, जिसको कि हम माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट भी कहते हैं. So these are going to affect individual enterprises. And general forces हम किन्हें कहते हैं? That is a part of macro environment जो सभी को प्रभावित करती हैं, like social changes, political changes, legal changes, technological condition. So all these are, तो sometime question पूछ लिया जाता है, name 2 specific forces of business environment, name 2 general forces of business environment. तो this point of view से आपको explanation learn करनी है कि you are able to answer these small questions also. The next feature of the business environment is interrelatedness. Interrelatedness मतलब all the forces which are outside the business are related to each other. ऐसा नहीं है कि एक जो फैक्टर है उसका असर दूसरे पे नहीं होता है. हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है increase life expectancy of the people. What is the meaning of life expectancy? एक इंसान में एवरेज कितनी लाइफ वो जीवित रहेगा, लाइव रहेगा, इट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. हर कंट्री का एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है. माना जाता है कि जहां पर मेडिकल एडवांसमेंट ज्यादा होती है वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है. इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम में इट वाज एवरेज 35 to 40 years.
आज की डेट में इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज टू 65 टू 68 ईयर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि उस टाइम पे माना जाता था कि इंडिया में जो इंडिविजुअल है वो 35 टू 40 ईयर्स लाइफ जिएंगे, एक्सपेक्टेड लाइफ है, और आज की डेट में वो बढ़कर हो चुका है 65 टू 68। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मेडिकल एडवांसमेंट होती जाती है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाती है। अगर किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो इसका दूसरा क्या मतलब है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर द हेल्थ केयर। इसका मतलब लोगों में हेल्थ को लेके काफी जागरूकता आई है, एंड दैट हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मेनी हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और इससे लोगों ने जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज्यादा डिमांड की है, जैसे फैट फ्री कुकिंग ऑयल्स मांगना शुरू कर दिया है, सॉफ्ट ड्रिंक कम कर दिए हैं, एंड इससे क्या हो रहा है, न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी ज्यादा से ज्यादा आ रही हैं, राइट। आप इसको आज की प्रेजेंट सिनेरियो से भी लिंक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड-19 के करते चलते हुए लोगों में एक अवेयरनेस आई है अपनी हेल्थ, हाइजीन और हेल्थ को लेके। हैंड वॉश की डिमांड मार्केट में बड़ी है। प्रॉब्लम एक थी कि वायरस आया जिसने काफी सारे लोगों को प्रभावित किया, लेकिन इस चेंज के कारण से अब ये जो कोविड-19 आया ये क्या है, ये एक हमारा हेल्थ इशू है, लेकिन इस हेल्थ इशू के कारण से हमारा सेल प्रोडक्शन एक्टिविटी किसकी बन रही है, हाइजीन एंड हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स की ज्यादा डिमांड हो रही है, मेडिसिन की ज्यादा डिमांड हो रही है, हमारी सेफ्टी को बनाने के लिए डेटॉल हो गया, सैनिटाइजर्स हो गए, हमारे व्हाट वी आर सेइंग हैंड वॉश हो गया, इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई, मास्क की डिमांड ज्यादा बढ़ गई। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑल द फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट, ऑल द डायमेंशंस ऑफ द एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। एक में चेंज होगा तो और चीजों में भी चेंज आएगा। अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा कि इंडिया ने जो किट है, फास्टेस्ट किट डेवलप की है कोविड-19 पेशेंट्स को टेस्ट करने की, विद इन आई थिंक एक रिकॉर्ड है कि 5 to 6 डेज में वो किट तैयार हो गई। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी साथ में ही हो रहा है। सो दैट दिस इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक, ये हम सभी जानते हैं, एनवायरमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक इज द वन दैट कीप ऑन चेंजिंग, and it keeps on changing, whether in terms of technological improvement, shift in consumer preferences or entry of new competition in the market. और business का environment हमेशा से ज्यादा environment जो है वो हमेशा डायनेमिक रहा है, चेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं। वो किसी कॉम्पिटिटर की आने की बात हो, वो कोई नई अपॉर्चुनिटी आने की बात हो, कोई इनोवेशन की बात हो, कोई टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की बात हो, या कोई लीगल कॉन्सेप्ट हो, जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया। तो जीएसटी इज व्हाट, जीएसटी इज अ एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट, तो इट इज अ लीगल चेंज। तो इस चेंज से भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रियली डायनेमिक इन नेचर। So these are the features we have written in a diagrammatic way. It's give a good look. So you can use such kind of styles to enhance your presentations. The next feature is uncertainty. Uncertainty means which is not certain. Can we certainly tell that business will change in this way? Answer is no. Business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict future happening. Business environment को uncertain क्यों कहते हैं? Because हमें पता ही नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। We can only analyze, we can only guess, we can only assume, but we cannot predict certainly कि ऐसा ही होगा। तो uncertainty जो है बिजनेस रिस्क में होती है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स विच इज नॉट क्लियर, विच इज नॉट easy. This environment is a complex phenomena that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in totality. आसान है ये कहना कि हम environment को समझते हैं, लेकिन इस फिनोमिना को बहुत मुश्किल होता है जब हम इन टोटालिटी में किसी चीज के बारे में बात करते हैं। तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मतलब एनवायरनमेंट एक कंट्री के बिजनेस का है ना, जो यूएसए में बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट से अलग है। जो हमारे यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट है that is different from that of China.
So business environment is a relative concept, which means it keep on changing country to country and region to region. दिल्ली के बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, जब वही चीज आप बैंगलोर में चले जाएंगे तो वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है. तो दैट वाई इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. सो बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बिजनेस हैज टू ऑपरेट इन दिस एनवायरनमेंट विच इज अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक. बट अगर हम एक बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सक्सेसफुल रहना चाहती है, तो दे नीड टू स्कैन देयर एनवायरनमेंट. एंड इफ दे विल कंटिन्यूसली स्कैनिंग देयर बिजनेस, उसको प्रिडिक्ट करते रहेंगे, उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट दैट अ कंपनी कैन एंजॉय. व्हाट आर दीज एडवांटेजेस? नंबर 1, it helps the firm to identify threat and early warning signal. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कंटिन्यूसली वॉच करते हैं कोई एंटरप्राइज, इससे क्या होगा? इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट. उन्हें ये पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में बिजनेस के लिए कौन से थ्रेट है. एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, और ये उनके लिए एक वार्निंग सिग्नल होगा कि आप इस चीज से अपने आप को बचा लीजिए. Next is it enable the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. पहले मैं आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल का एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि आपको पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक इज अ बैन इन इंडिया, लेकिन इस चीज के जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत पहले से आने शुरू हो गए थे. जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन चला के लोगों को सूचित किया था. So all those aware businessmen, they take into notice कि we have to use single-use plastic. So they have already started with papers bags and other homemade bags. इससे क्या हुआ कि when government stopped these single-use plastic bags and other things, so they were not at a loss because they have already taken a appropriate step to protect their business. Next is it enable the firm to identify opportunities and getting the first mover advantages. Again, अगर हम अपने business environment को continuously watch करते हैं, तो इससे business environment में जो छुपी हुई opportunities हैं, आप उन्हें identify कर सकते हैं and getting the first mover advantages. और obviously जो opportunity को पहले identify करेगा, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस भी मिलेगा. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके टीचर्स आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं. जिन लोगों ने इस चीज को समझते हुए अपने कंटेंट को पहले से बनाना शुरू कर दिया, दे आर एबल टू कैटर टू देयर स्टूडेंट्स एंड द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. जिन लोगों ने इस चीज पे काम नहीं किया हुआ था, उनके लिए ये प्रॉब्लम के तौर पे इमर्ज हुआ है. सो whenever any situation comes, हम उसे अगर प्रॉपरली स्कैन करें तो हमें उसके अंदर जो छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज हैं उससे हमें बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाता है. The next benefit of environment is it helps in coping with rapid changes. और अगर हम अपने environment को स्कैन कर रहे हैं तो it help us to change ourselves according to the environment. हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करके उसके लिए पहले से तैयारी कर ली थी. Next, it helps in tapping useful resources. Whatever the resources business require, it all available in the environment. बिजनेस को जितने भी बेटा रिसोर्सेज चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो फिजिकल रिसोर्स है, everything is available in the environment. So if you scan your environment, if you observe your environment properly, you are able to identify the sources जहाँ से आप अपने लिए resources generate कर सकते हैं. तो it is helpful in tapping useful resources. Next, it helps in improving performance. Definitely, if we'll scan our environment properly, so we are able to identify opportunities, we are able to identify our strength, we are able to identify threats hidden in it. So it helps us to improve our performance, क्योंकि timely action लेना जरूरी है अपनी performance को improve करने के लिए. And the next one is it helps in assisting in planning and policy formulation. And if we are able to predict our environment very well,
So definitely our planning will be based on those prediction. तो अगर हमारा prediction अच्छा है, हमने environment को बहुत अच्छी तरह से scan करके उसको analyze किया है, तो हमारी planning भी उतनी अच्छी होगी और उसके base पे जो हम policy बनाएंगे अपने objective को achieve करने के लिए, that will also be very good. Now comes the dimensions of business environment. What is dimension? These are the factors that constitute business environment. ना हम कह रहे हैं कि business environment में बहुत सारी forces काम कर रही हैं. तो these factors and forces are called dimensions of business environment. There are 5 dimensions in our syllabus. So here we are going to discuss about this. The first one is economic environment. So what is economic environment? Economic factors like interest rates, inflation rates, change in disposable income of people, stock market indices, value of rupees are some factors that affect management practices and business enterprises. अगर बड़े आसान शब्दों में कहूँ, बिजनेस में आज जितने भी टर्म्स पढ़ते हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, और इकोनॉमिक्स में demand, supply, investment, all these terms are a part of economic environment. Budgetary policy, monetary policy, taxation policy, right? So वो सारे factors जो आप economics में पढ़ते हैं और business में पढ़ते हैं, that is a part of economic environment. Example के तौर पे global environment, interest rate, rising income level, demographic, urbanization, right? These all are macroeconomic factors. इसके अलावा इंडिया की जीडीपी है ना, हमारी जीडीपी क्या है, इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक फैक्टर्स. वैल्यू ऑफ रुपी है ना, आज रुपी इतना बढ़ गया डॉलर के कंपैरिजन, रुपी इतना गिर गया डॉलर के कंपैरिजन या अदर करेंसी के कारण से. सो ऑल द मनी रिलेटेड टर्म्स आर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट. The next component is social environment. What is social environment? Social environment of business include all the social forces like custom, tradition, value, strength, society expectation from the business. So business, social environment is very important to any business because this social environment keep on changing from country to country. The custom, tradition, festival, values of India is entirely different from what Western countries are having. So because this is the era of globalization, so when those companies are coming to India, they have to take care of our social environment. Then only they are able to make profit and income from India. So it consists of festivals. So India is a land of festivals, you can notice, and I think the list is endless. It also consists of tradition and culture and change in the taste and preferences. So the Indian tradition is quite rich and its culture too. So the change in the taste of the customer is also a part of social environment. Next comes the political environment. Political environment include political conditions such as general stability and peace in the country and specific attitude that elected government representative hold towards the business. जब हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल कंडीशन है ना, जनरल स्टेबिलिटी कैसी है. अगर सरकार बार बार गिर जाती है, इसका मतलब हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही वॉल्टाइल है, राइट. एंड number 2, it also consists of specific attitude that elected government representative hold toward business. According to one survey, when Mr. Narendra Modi ji was elected as a prime minister of the country, so business world welcomed this move. Why? Because he is a man who proved in Gujarat, being a CM, that he led the industry to flourish. अब गुजरात जब वो मुख्यमंत्री के तौर पे थे, उन्होंने वहां पर काम करके इस बात को साबित किया था कि ही इज इन द फेवर ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस. तो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने पर बिजनेस वर्ल्ड ने इसे बहुत ज्यादा वेलकम किया था. तो ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है टुवर्ड बिजनेस. The significance of political condition in business success lies in the predictability of business activity under stable political conditions. अगर
किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है तो वहां पर बिजनेस कम्युनिटी का जो फेथ है वो ज्यादा होता है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम बार बार चेंज होता है तो बिजनेस कम्युनिटी का फेथ वहां पर नहीं होता। तो जो बाहर से इंडस्ट्रीज आती हैं फिर वो इंडिया जैसी कंट्री में या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है काम करने से थोड़ा हिचकिचाती हैं। सो वी नो दैट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज हैं। तो जब भी कोई गवर्नमेंट सत्ता में आती है और वो डिसीजन लेती है, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का ही डिसीजन होता है तो या पार्टी का डिसीजन होता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट कम द लीगल एनवायरनमेंट। Legal environment include various legislation passed by government, administrative orders issued by government authority, court judgment, as well as decision rendered by various commissions and agencies at every level of government. It may be at center, state or local. Political party और legal environment में अक्सर कई बार बच्चे confuse होते हैं। There is a difference. Political environment is a decision of any one political party. बट जो लीगल एनवायरनमेंट होता है वो जो कंट्री का लेजिस्लेशन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल पास करती है, वो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, हाई कोर्ट ने पास किया, किसी सेंटर ने। अब कोविड-19 की कंडीशन के अंदर जो लॉकडाउन है वो सेंटर गवर्नमेंट का डिसीजन है और उस डिसीजन के अंदर हम सभी लोगों ने सारी जगहों को बंद किया हुआ है। दिस इज अ लीगल फ्रेमवर्क कि इस दौरान पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आह्वान नहीं है, ये कंट्री की सेंटर में जो पावर है उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क करके पास किया है और बाकी की सारी स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर काम कर रही है। तो ये लीगल एनवायरनमेंट। डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो एक लीगल एक्ट था, जीएसटी जो आया वो एक लीगल एक्ट था। तो देयर आर मेनी लीगल एनवायरनमेंट जिसके अंदर काम हो रहा है। सो लीगल एनवायरनमेंट में लेजिस्लेटिव ब्रांचेस आते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, कोई लीगल प्रोटेक्शन एक्ट पास हुए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है, दैट्स कम अंडर द लीगल एनवायरनमेंट। एंड बिजनेस लॉज, कंपनीज लॉज, इनकम टैक्स लॉज, दैट इज अ पार्ट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क को समझना क्यों जरूरी है? Adequate knowledge of rules and regulation framed by the government is prerequisite for better business performances. अगर किसी भी बिजनेस ने बेटर काम करना है तो उन्हें इन रूल्स एंड रेगुलेशन को और जो एनेक्टेड लॉज हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ कैन लैंड द बिजनेस एंटरप्राइजेस इनटू लीगल प्रॉब्लम। और अगर कोई फर्म इस लीगल फ्रेमवर्क को नहीं मान रही है तो वो अपने लिए लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, आपने एक लेबल देखा, वार्निंग, स्मोकिंग कैन किल यू। अक्सर जो स्मोक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये स्टैट्यूटरी वार्निंग आप देखते हैं। क्या कंपनीज इन्हें शौक से लिखती हैं? नॉट एट ऑल, बिकॉज ये इस तरह की स्लोगन लिखने से लोग पीछे हटेंगे। पर कंपनी स्टिल अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये क्यों लिख रही हैं? बिकॉज पैकेट ऑफ सिगरेट पे ये वार्निंग लिखना जरूरी है, ये लीगल फ्रेमवर्क है। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे आप प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस को फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज दे कैन नॉट डू देयर बिजनेस स्मूथली इन द कंट्री। The next comes the last dimension, that is called technological environment. Technological environments include forces relating to scientific improvement and innovation, which provide ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन, एडवांसमेंट जो हो रही है वो नए प्रोडक्ट बनाने की बात है या कोई टेक्निक डेवलप करने की बात है। तो जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं इन्हें हमने खुद विटनेस किया है ना। हमने कहा डिजिटल इंडिया बनाना है, मोदी जी का आह्वान है डिजिटल इंडिया बनाइए, है ना। तो इसका डिजिटल इंडिया मतलब कैशलेस हो जाइए। तो ये क्या है? ये तभी पॉसिबल है जब हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हम साइबर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम पेटेंट फॉर्मूला डेवलप करने की बात कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन के नए डिवाइसेस ढूंढने की बात कर रहे हैं, हम सैटेलाइट और रोबोट्स के थ्रू नए उपलब्धियों को पाने की बात कर रहे हैं। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल environment. So dear student, our business environment is consist of all these things. So
I hope this topic is clear to you, and we will be back with another session next time. Thank you.